تین حرف بولے، پھر دو جملے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ایک جملہ کہ یہ کتاب لا ریب، بے عیب، شک، شبہ، وہم، گمان، تردد، رائبہ، شائبہ، مریا سے بھی پاک۔ میں نے پھر سوال کر دیا، اللہ کیا مطلب ذالک الکتاب کیوں کہا؟ علماء کی نظر کرنے چلا ہوں، اپنے ذوق کی گہرائی اور عمق اور ڈیپ توجہ رکھنا۔ اللہ چاہیے تو یہ تھا ذالک القرآن لا ریب فیہ ہوتا۔ میں نے اس قرآن کا ذکر قرآن میں جہاں بھی دیکھا مجھے لفظ قرآن نظر آیا، یاسین والقرآن الحکیم، الرحمن علم القرآن بل هو قرآن مجید، ان ھذا القرآن لو انزلنا ھذا القرآن شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اللہ ہر جگہ لفظ قرآن قرآن قرآن، لیکن یہاں پر ذالک القرآن لا ریب فیہ نہیں کہا بلکہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہا۔ اللہ کتاب کیوں کہا، قرآن کیوں نہیں کہا؟ فرمایا اس لیے، پوری توجہ لاہور والوں، اس لیے کہ اگر 14ویں صدی کا کوئی کافر، 14ویں صدی کا کوئی مرتد، 14ویں صدی کا کوئی زندی، 14ویں صدی کا کوئی منافق، 14ویں صدی کا کوئی کھٹمل، 14ویں صدی کا کوئی چوڑا، 14ویں صدی کا کوئی مراسی، 14ویں صدی کا کوئی بے ایمان اگر اس قرآن کو جھوٹا کہے، اگر میں ذالک القرآن کہتا تو وہ بھی کہتا کہ اللہ نے قرآن کو سچا کہا۔ یہ قرآن نہیں، یہ تو صحابہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ قرآن تو وہ جو غاروں میں پڑا ہے، قرآن تو وہ جس کے 40 پارے ہیں، قرآن تو وہ جس کے 10 پارے بکری کھا گئی۔ اللہ فرماتے ہیں میں اس کے دجل، فریب، دھوکے، بے ایمانی، شیطنت، ارتداد، زندقہ اور کفر کو جانتا تھا۔ میں نے اس لیے 1400 سال پہلے ذالک القرآن نہیں کہا، ذالک الکتاب کہا۔ ایمان والو، یہی کتاب سچی ہے جو تیرے ہاتھوں میں ہے۔ وہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، وہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، اور جو وہ منہ سے بولتے قرآن وہ تقریر ہے۔ رخ مصطفیٰ کو دیکھ کر کہتی ہے دنیا آج تک، رخ مجتبیٰ کو دیکھ کر کہتی ہے دنیا آج تک، رخ وضحا کو دیکھ کر کہتی ہے دنیا آج تک، رخ ودجا کو دیکھ کر کہتی ہے دنیا آج تک، رخ خیر الورا کو دیکھ کر کہتی ہے دنیا آج تک، ارے وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر سلسلہ سیاست کے فصوں کو ہم نے اصحاب پیمبر سے محبت کی ہے، اور اصحاب پاک مصطفیٰ کو رب نے کیا جگر دیا، اصحاب پاک مصطفیٰ کو رب نے کیا جگر دیا۔ بہرحال بے دھڑک سب نے مال و زر دیا، کسی نے سلسلہ دیا، کسی نے نصف گھر دیا، پر عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا، خدا کے نام کے سوا جو کچھ تھا لا کے دھر دیا۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد اعزاز ذی قدر علماء کرام، شعراء کرام، قراء حضرات، طلباء کرام، عمائدین علاقہ، معززین شہر، منتظمین و معاونین، حاضرین و سامعین، بزرگان دین اور نوجوان دوستو، ان بچوں کو خاموش کرو۔ آج
21 नवंबर 22 नवंबर सन 2025 को आप हजरात के इस जिंदा दिलान के शहर लाहौर में बरादर अजीज, बरादर मुकर्रम, हर दिल अजीज शख्सियत, पैकर इखलास व सादगी हजरत मौलाना कारी अबू बकर सिद्दीक साहब की पुरखुलूस दावत पर हाज़री का इत्तेफाक नसीब हुआ है। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी इस काविश और साये जमील को और मेरे और आपके आने को अपनी दरबार में कबूल व मंजूर फरमाए। जो जिंदा बैठा हो आमीन कह दे। मैंने 2 साल पहले भी इन्हें वक़्त दिया था, लेकिन शदीद धुंध हो गई थी, मोटरवे सफ़र के काबिल नहीं था, तो मैंने इनसे माजरत की और मैं शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मेरी माजरत कबूल कर ली थी। वगरना जैसे कैसे मैं पहुँचता। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 40 साला खिताबत में आपको कोई ये गिला नहीं करेगा कि आज तक मैंने किसी को धोखा दिया हो, सिवाय किसी शरई उज़्र के। माशाअल्लाह आपका जोश, आपका जज्बा, आपका वलवला काबिल दीद है और हजरत कारी साहब की मेहनत और हुस्न ज़ौक़, हुस्न इंतज़ाम, ख़ास तौर पर फिर वक़्त की पाबंदी, यकीन माने ये पाकिस्तान में पहली जगह पे देखा है कि बड़े डिसिप्लिन के साथ अपने प्रोग्राम को बड़ी तरतीब से चलाते हैं। मैं आप में से कुछ पुराने दोस्त चंद एक बैठे होंगे जो मेरी जवानी के दौरे खिताबत से वाकिफ होंगे। अब तो मैं बुढ़ापे में इनके हाथ आ गया हूं, तो मैं शुरू में कहा करता हूं कि मैं कोई लंबी चौड़ी तकरीर करने का आदी नहीं हूं। कोशिश करता हूं कम बोलूं और काम का बोलूं। और मैं कहा करता हूं कि मैंने 85 से 1985 से खिताबत के समंदर में कदम रखा था। आज 2025 अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है, तो यूं महज अल्लाह के फजल व करम से मुझे 40 साल हो गए इस समंदर में तैरते हुए। जिनका दिल खुश होता हो वो कहे सुभान अल्लाह। मगर ये बताने का मकसद ये हरगिज नहीं कि मैं कोई बड़ा बुजुर्ग खतीब हूं। हाँ, न्यू इज सिल्वर, ओल्ड इज गोल्ड, नेवर नथिंग नॉट। बल्कि मकसद ये है कि आप मेरी इस 40 साला खिताबत के दौर की 85 से लेकर टुडे तक कोई तकरीर उठाएं तो मेरी तकरीर में ना तो कोई लतीफ़े होते हैं, ना कोई चुटकुले होते हैं, ना कोई हंसाने, रुलाने, घुमाने और वक्त ज़ाय कराने की बातें होती हैं। मैं एक अलग धुन का खतीब हूँ। अपने मौजूए सुखन के समंदर की लहरों पे तैरता हूँ, फिर उस समंदर में गोते खाता हूँ, बड़ी गहराई तक जाता हूँ, हीरे और मोती उठाता हूँ, तुम्हारे दामन में सजाता हूँ, उलमाए देवबंद का अकीदा बताता हूँ। पर करता उस वक़्त हूँ जब सामने बैठे हुए चेहरों पर भी कोई तलब का जज्बा छलक रहा। मजा तो तब है ना कि दोनों तरफों आग बराबर लगी हुई। यार उलमाए कराम के बच्चों को बैठा दो, ये साहिबजादे बड़ा तंग करेंगे, प्लीज इनको एक ही जगह बैठा दो। हाँ, साइड पे, शाबाश। क्योंकि मैं थोड़ा बाज़ौक़ किस्म का बंदा हूं कि मैं वो मौलवी या खतीब तो हूं नहीं कि पैसा फेंक तमाशा देख। मैंने नोट भी खा मेरा मूड बढ़े। हाँ, मैं ज़ौक़ वाला और दिल वाला खतीब हूं। दिल से बोलता हूं, दिल में उतारता हूं। मुझे सिर्फ आपकी आंखों की मुफ्त वाली तवज्जो चाहिए। कोई पैसा, कोई कापी, कोई नोट, कोई बरसात, बिल्कुल नेवर नथिंग नॉट। सिर्फ अगर आप तवज्जो रखेंगे तो आज लाहौर वालों, मुझे कारी साहब ने तो बड़ी मेहनत की कि आपने
महफिल हमद व नात है तो सीरत पे बोलना है, और मैं भी जिद पे अड़ा रहा कि मैंने कहा यार नादिर भाई ने जो माहौल बना दिया है, आज मेरा दिल करता है कि मैं भी नबी के यारों के सर के ताज के हीरों की चमक दिखाऊं। जिंदो वाली कह दो सुभान अल्लाह। और मैं जो उन्वान आज आपको पेश करने चला हूं, तहदीस पे नेमत के तौर पे कहा करता हूं, तफाखुरन नहीं, कि अगर कोई 100 साल का बूढ़ा बुजुर्ग भी यहां बैठा है तो वो भी इंशाअल्लाह जिंदगी में पहली दफा सुनेगा। बहुत बड़ी बात कर रहा हूं सिर्फ आपकी तवज्जो मरकूज करने के लिए कि ये उन्वान में बहुत कम जलसों में, खास तौर पर जहां उलमा तलबा का मजमा हो, मैं वहां पे बयान करता हूं। और मैं कहा करता हूं कि ये बयान मेरी 40 साला खिताबत का निचोड़ है। क्यों? इसलिए कि तकरीबन आज से 21 बरस पहले 2003 दिसंबर और 2004 जनवरी 2 माह के लिए मैं साउथ अफ्रीका के बड़े बड़े मदारिस में रद्द राफसियत पर मुनाजरा पढ़ाने गया। तो वहां पर मैंने एक रात ये उन्वान खिलाफत राशिदा का है और एक इल्हामी उन्वान है। मैंने इस पे जब गुफ्तगू की, जनवरी 2004 था, अल्लाह को गवाह बना के कह रहा हूं कि उसी रात अल्लाह ने मुझे ख्वाब में काबे के अंदर अपने नबी की भी जियारत करा दी, 4 यारों की भी जियारत करा दी। यह इतना बड़ा मेरा मुकद्दस उन्वान है, इसलिए अहले इल्म और अहले ज़ौक़ और अहले नज़र की मैं पूरी तवज्जो चाहूँगा। आओ तवज्जो रखना। मैं बात को शुरू करने चला हूँ कि कायनात के रब ने यूं तो रुए ज़मीन पर मुख्तलिफ मखलूक़ात, नबातात, जमादात, दरिंद परिंद चरिंद, इंसान हैवान, मलाइक, नारी नूरी, अर्शी फर्शी, सूरज चांद सितारे सयारे नुजूम कवाकिब, शम्सो कमर, हजरो शजर, बारो बर, शामो सहर, नूरो बशर, जन्नत हुरो गिल्मा, मुख्तलिफ चीज़ें पैदा की। लेकिन सारी कायनात में कायनात के रब ने इंसानियत को चुनकर वो मेराज अता किया कि इसे अशरफुल मखलूकात भी कहा, अफजलुल मखलूकात भी कहा, अकमलुल मखलूकात भी कहा, अहसनुल मखलूकात भी कहा, अजमलुल मखलूकात भी कहा। लेकिन फिर वो इंसान तो एक समंदर की तरह ठाठे मारता हुआ समंदर था। वो कोई अरबों की तादाद में नहीं, खरबों की तादाद में है, थे, रहेंगे, सुबह कयामत तक आएंगे। लेकिन कायनात के रब ने उन सारे इंसानों में एक तबके को चुना। पूरी तवज्जो रहे मेरी तरफ। एक तबके को चुना जिसे अंबिया का तबका कहा, और फिर उस अंबिया के तबके में भी 2, 4, 10, 20 हजार नहीं बल्कि 1,24,000 पैगंबर भेजे। फिर उन 1,24,000 पैगंबरों में अल्लाह ने 313 रसूल चुने और उन 313 रसूलों को पूरी कायनात में नुमाया कर दिया। फिर उन 313 रसूलों में अल्लाह ने 10 उलुल अज़म अंबिया चुने। उन 10 उलुल अज़म अंबिया को उन 313 रसूलों में भी सबसे नुमाया कर दिया। फिर उन 10 उलुल अज़म अंबिया में अल्लाह ने 4 अंबिया और रसूल चुने। एक जनाबे इब्राहिम खलीलुल्लाह, एक जनाबे मूसा कलीमुल्लाह, एक जनाबे ईसा रूहुल्लाह, एक जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर उन 4 रसूलों को चुनकर उन 10 में भी नुमाया कर दिया। फिर उन 4 रसूलों में अल्लाह ने तेरे और मेरे पैगंबर, सरवरे कौनैन पैगंबर, साकिए कौसर पैगंबर, ताजदारे मदीना पैगंबर, फखरे दो आलम पैगंबर, आमना के दुर्रे यतीम, अहमद मुस्तफा, मोहम्मद मुस्तफा, सबके दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चुनकर रूए जमीन के सारे नबियों, पैगंबरों और रसूलों का सरदार बना दिया। आओ लाहौर वालों, बिल्कुल इसी तरह हूबहू, रूबरू, सूबसू, सेम टू सेम कायनात के रब ने असहाबे मुस्तफा के लिए भी यही तरतीब रखी कि कायनात की उम्मतों में उम्मत मोहम्मद को चुनकर पूरी दुनिया में नुमाया कर दिया। फिर उम्मत मोहम्मद में असहाबे मुस्तफा की जमात को चुनकर पूरी उम्मत में नुमाया कर दिया। फिर असहाबे मुस्तफा के 1,56,000 सहाबा में 313 असहाबे बदर
बकर को चुनकर सबसे नुमाया कर दिया। फिर 313 असहाबे बदर में 10 अशरा मुबशरा को चुनकर उनमें भी नुमाया कर दिया। फिर उन 10 अशरा मुबशरा में 4 खिलाफाए राशिदीन को चुनकर उनसे भी नुमाया कर दिया। फिर उन 4 खुलफाए राशिदीन में तैयबा कायनात, ताहिरा कायनात, अतीका कायनात, अफीफा कायनात, हबीबे खुदा आयशा सिद्दीका के बाप अबू बकर सिद्दीक अकबर को चुनकर रूए जमीन की सारी उम्मतों का सरदार बना। नारे तकबीर, दोनों हाथ उठा के शान सिद्दीक अकबर, मकाम सिद्दीक अकबर, अल्लामा यहया अब्बासी साहब। क्या कहने हजरत, वाह वाह, कोई जवाब नहीं, माशाअल्लाह। लाहौरियो ईमान से बताना, मेरी तकरीर के मुताबिक नारे का जवाब था। मैं बुढ़ापे में कैसे बोल रहा हूं, तुम जवानी में कैसे बीमार बैठे हो। दोबारा जरा दोनों हाथ उठा के गजबज के शान सिद्दीक अकबर, मकाम सिद्दीक अकबर। पूरी तवज्जो रखना, अभी मैंने मौजूद शुरू नहीं किया। ये मैं 10-15 मिनट की तमीद बांधता हूं ताकि मैं मजमे के तेवर पढ़ लूं, कुछ बोलना है या टाइम पास करना है। अगर आप तवज्जो करेंगे तो मैं अपना इल्हामी, लदुन्नी और कीमती इंशाअल्लाह, जैसे मैंने दावा किया है, बड़े उलमा असातिज़ा बैठे हैं, इंशाअल्लाह मैं अपने दावे को साबित करके जाऊंगा। अगर आप जिंदा दिलाने लाहौर बनकर बैठे, हाँ, अब एक दफा दिल वाली गूंज के कह दो सुभान अल्लाह, ताकि दुनिया को पता चले ना, सच्चे आशिक बैठे हैं, चूरी वाले मजनू नहीं बैठे, खून देने वाले बैठे हैं, हलवा खाने वाले नहीं बैठे। आओ अब उन्वान शुरू करने चला हूं, आपकी तवज्जो के साथ, पूरी तवज्जो रखना, बात शुरू करने चला हूं। अपने उस उन्वान की मैंने ये खिलाफत राशिदा की एक तमहीद आपके सामने तकवीन कायनात के ज़ुमरे में, तदवीन कायनात के ज़ुमरे में, तरतीब कायनात के ज़ुमरे में, तारीख कायनात के ज़ुमरे में मैंने एक पेश किया गुलदस्ता। अब मैं उन्वान पे चलता हूँ। हाँ, उलमा बैठे हैं, इनसे पूछना, मुफस्सरीन लिखते हैं हाँ कि पूरे कुरान का खुलासा, पूरी तवज्जो चाहूँगा आगे पीछे वालों से, कि पूरे कुरान का खुलासा सूरह बकरा में है, और सूरह बकरा का खुलासा सूरह बकरा की शुरू की 4 आयतों में है। आओ अब उन 4 आयतों को मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं कि फिर माना, मतलब, माखज, मंबा, मावा, मलजा, मेवर, मरकज, सरापा क्या निकला कि पूरे कुरान का खुलासा भी, ईमान का खुलासा भी, इस्लाम का खुलासा भी और मेहनत नबी आखिर ज़मान का खुलासा भी उन 4 आयतों में है। लाहौर वालों, आज अपने ज़ौक़े अब्बासी के समंदर से 4 हीरे देने चला हूं, इन 4 पे अमल करना, दुनिया में भी 4 चांद लग जाएंगे, जन्नत में भी 4 चांद लग जाएंगे। क्या कहने हजरत, आओ अल्लाह। आओ अब सूरह बकरा का आगाज करने चला हूं। मैंने जो आयत आपके सामने खुतबे में तिलावत की है, अल्लाह करे मुझे 2-4 बंदे स्टेज पे और 2-4 इधर से ज़ौक़ वाले मिल जाए, मेरी बात पूरी हो जाएगी। हाँ, कायनात के रब ने सूरह बकरा का आगाज किया कैसे? फरमाया अलिफ लाम मीम, 3 हरफ, आगे 2 जुमले, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। उलमा बैठे, ये 3 हरफ और 2 जुमले कुरान के लिए, कुरान की अजमत, सदाकत, हकानियत के लिए 3 हरफ 2 जुमले। मैं अपने अंदाज में कहा करता हूं, अल्लाह ने कुरान की अजमत और सदाकत और हिफाजत के लिए 3 हरफी बात की, 2 लफ्जी बात की। क्या 3 हरफों में और 2 लफ्जों में अल्लाह ने बात ही समेट दी, समंदर को मुट्ठी में बंद कर दिया। अल्लाह क्या मतलब? फरमाया देखते नहीं, मैंने कुरान का जिक्र करने से पहले 3 हरफ बोले, अलिफ लाम मीम। अल्लाह क्या मतलब? फरमाया ये सिर्फ लफ हरफ नहीं, ये कसमें हैं, अलिफ भी कसमिया, लाम भी कसमिया, मीम भी कसमिया। अल्लाह क्या माना? फरमाया मैंने 3 कसमें पहले उठाई, कुरान की बात बाद में शुरू कराई। अलिफ मुझे अपनी उलूहियत की कसम, लाम मुझे जिब्रील की सदाकत की कसम, मीम मुझे मोहम्मद की अजमत की कसम। जैसे मैं सच्चा वैसे ये किताब सच्ची, जैसे जिब्रील सच्चा वैसे ये किताब सच्ची, जैसे मोहम्मद सच्चा वैसे ये किताब सच्ची। जैसे हम में शक नहीं वैसे इसमें भी शक नहीं। जो हमारा इनकार करे वो भी काफिर है, जो इस
हजरत, वाह वाह। अजमत कुरान का उन्वान नहीं, वगरना मैं अलिफ लाम मीम पे घंटा बोलता, मगर आगे चलता हूं, मेरा उन्वान आगे है। अल्लाह ने सूरह बकरा का आगाज बड़े खूबसूरत अंदाज में 3 हरफ 2 जुमले कुरान के लिए कहे। पहला जुमला बिठा दो भी बच्चे को बिठा दो प्लीज प्लीज, मुझे डिस्टर्ब ना करना, नहीं तो मैं दुआ कर देता हूं फिर। हाँ इधर या शेख मेरे तू डाटा सुन आवे तो फिर वेखी सदके जहां पर हाथ ना लावा। मैं जोर का वुजू करके घर से चला हूं, जोर की नमाज पढ़ के, इधर इन्होंने मुझे वुजू ही नहीं करने दिया, बस चाय पिलाई। मैंने कहा टाइम है, कहते है, मैंने कहा चलो, वापसी पे धुंध हो जाती है, मैंने सफर करना है, मैंने कहा मुझे तो फारिग करो। हाँ इसलिए मैं फौरन बस उतर कर आपके पास ही आ गया हूँ, इसलिए पूरी तवज्जो रखना। अल्लाह ने 3 हरफ बोले, फिर 2 जुमले, ज़ालिकल किताब लारे बफी हुदल लिल मुत्तकीन। एक जुमला कि ये किताब लारे बेऐब, शक शुबा वहम गुमान तरद्दुद रायबा शायबा मिरिया से भी पाक। मैंने फिर सवाल कर दिया, अल्लाह क्या मतलब ज़ालिकल किताब क्यों कहा? उलमा की नजर करने चला हूं, अपने ज़ौक़ की गहराई और उमक और डीप तवज्जो रखना। अल्लाह चाहिए तो ये था ज़ालिकल कुरान लारे बफी होता। मैंने इस कुरान का जिक्र कुरान में जहां भी देखा मुझे लफ्ज़ कुरान नजर आया। यासीन वल कुरानिल हकीम अर्रहमान अल्लमल कुरान बल हुवा कुरानुम मजीद इन्ना हाज़ल कुरान लौ अंज़लना हाज़ल कुरान शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। अल्लाह हर जगह लफ्ज़ कुरान कुरान कुरान, लेकिन यहाँ पर ज़ालिकल कुरानो लारे बफी नहीं कहा, बल्कि ज़ालिकल किताबो लारे बफी कहा। अल्लाह किताब क्यों कहा, कुरान क्यों नहीं कहा? फरमाया इसलिए, पूरी तवज्जो लाहौर वालों, इसलिए कि अगर 14वीं सदी का कोई काफिर, 14वीं सदी का कोई मुर्तद, 14वीं सदी का कोई जिंदी, 14वीं सदी का कोई मुनाफिक, 14वीं सदी का कोई खटमल, 14वीं सदी का कोई चूड़ा, 14वीं सदी का कोई मरासी, 14वीं सदी का कोई बेईमान अगर इस कुरान को झूठा कहे, अगर मैं ज़ालिकल कुरान कहता तो वो भी कहता कि अल्लाह ने कुरान को सच्चा कहा। ये कुरान नहीं, ये तो सहाबा की लिखी हुई किताब है। कुरान तो वो जो गारों में पड़ा है, कुरान तो वो जिसके 40 पारे हैं, कुरान तो वो जिसके 10 पारे बकरी खा गई। अल्लाह फरमाते हैं मैं उसके दजल फरेब धोखे बेईमानी शैतानत इर्तिदाद ज़ंदका और कुफ्र को जानता था। मैंने इसलिए 1400 साल पहले ज़ालिकल कुरान नहीं कहा, ज़ालिकल किताब कहा। ईमान वालों, यही किताब सच्ची है जो तेरे हाथों में है। वाह वाह, अज़मत कुरान। नहीं नहीं मजा नहीं आया, दो में हाथ चौक के, अज़मत कुरान, अज़मत कुरान। क्या कहने हजरत, क्या कहने, कोई जवाब नहीं। माशाअल्लाह मैं माशाअल्लाह। अभी भी तमहीद में खड़ा हूँ। अगर थके हुए हो तो मैं ज़ाय ना करूँ उन्वान अपना, थके हुए तो नहीं, पक्की बात है। फिर एक दफा जिंदो वाली सुभान अल्लाह कह दो। पूरी तवज्जो रहे, बड़ा लंबा सफर करके आया हूँ, चाहता हूँ कि सफर को पूरा करूँ। पूरी तवज्जो रखना। अल्लाह बात समझ आ गई। आपने हर जगह लफ्ज़ कुरान कहा, यहाँ ज़ालिकल कुरान की बजाय ज़ालिकल किताब कहा, ताकि वो बेईमान, वो मुर्तद, वो जिंदीक, वो काला, वो खटमल, वो मुनाफिक, वो बेईमान, वो चूड़ा, वो मिरासी, वो भंगी, वो चरसी, हाँ ये ना कह सके कि रब ने कुरान को सच्चा कहा है। ये कुरान थोड़ा है, कुरान तो उधर पड़ा है, कोई आएगा तो लेके आएगा। अल्लाह फरमाते मैंने उसके मुंह पे थप्पड़ मारते हुए कहा ज़ालिकल किताब ला रहे बफी, ये किताब सच्ची है जो तू पढ़ रहा है। अगला जुमला पूरी तवज्जो रखना। अगला जुमला फरमाया हुदल लिल मुत्तकीन, 3 हरफ 2 जुमले। दूसरा जुमला क्या फरमाया? हुदल लिल, बोल पढ़ो, हुदल लिल मुत्तकीन, कि ये किताब मैंने मुत्तकीन के लिए भेजी है। मुत्तकीन की हिदायत का राह मंज़िल है, मुत्तकीन की हिदायत का समंदर है। जो भी आएगा गोता खाएगा, पाक हो जाएगा। हाँ मैंने फिर सवाल कर दिया, पूरी तवज्जो चाहूंगा। मैंने फिर सवाल कर दिया, अल्लाह हुदल लिल मुत्तकीन कहकर, लफ्ज़ मुत्तकीन कहकर हसर क्यों लगा दी, पाबंदी क्यों लगा दी, लफ्ज़ को बाउंड क्यों कर दिया, 4 दीवारी में बंद क्यों कर दिया? चाहिए तो ये था हुदल लिल आलमीन, कि ये मैंने आलमीन की हिदायत के लिए भेजा है। लेकिन आपने मुत्तकीन की हसर और पाबंदी क्यों लगाई? तो मुझे इकबाल के शिकवा जवाबे शिकवा की तरस पर जवाबे शिकवा मिलता है। ये भी तुम्हारी तसल्ली के लिए मैंने मुत्तकीन कहा कि अगर 14वीं सदी का कोई बेईमान, कोई मुनाफिक, मुर्तद अगर इस किताब को ना माने तो परेशान
ہدی للمتقین، میں نے یہ کتاب متقین کے لیے بھیجی ہے۔ اب عنوان شروع کرنے چلا ہوں، اس کے بعد میرا موضوع شروع ہوتا ہے۔ ہاں، ہدی للمتقین کے بعد اللہ نے پھر 4 باتیں، 4 جملے، 4 آیتیں، 4 نشانیاں، 4 چہرے۔ جو زندہ بیٹھا ہو، جس کے منہ میں ہو زبان، وہ کہے سبحان۔ بلکہ پھر میں کچھ وی آئی پی ایس کے لیے کہا کرتا ہوں، جس کو رب لینے دیتا ہو اپنا نام، وہ کہے سبحان۔ پوری توجہ رکھنا، علماء سے پوچھو ہدی للمتقین کے بعد آگے جو آیتیں ہیں نا، یہ تفسیر قرآن بالقرآن ہے، تفسیر قرآن بالقرآن ہے۔ آگے ہدی للمتقین کا اللہ نے ترجمہ کیا، وضاحت کی، تشریح کی۔ ہاں، اس پھول کی پتیوں کو بکھیرا۔ اللہ متقی کون ہے؟ پوری توجہ لاہور والوں، اللہ فرماتے ہیں متقی کی پہلی نشانی الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ جو ایمان بالغیب لائے۔ اللہ دوسری نشانی فرمایا ویقیمون الصلاۃ، متقی وہ جو شروع سے آخر تک نماز پہ پکا نظر آئے۔ اللہ متقی کی تیسری نشانی فرمایا مما رزقناہم ینفقون، متقی وہ جس کو میں مانگ دیتا جاؤں وہ آنکھیں بند کر کے میرے نام پہ لٹاتا جائے۔ اللہ متقی کی چوتھی نشانی فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، متقی وہ جو محبوب میں نے تم پہ علم وحی اتارا اور تم سے پہلے انبیاء پہ اتارا، جو اسے جانتا بھی ہو اسے مانتا بھی ہو، وہ متقی ہے۔ لاہور والوں توجہ رکھنا، میں نے پھر سوال کر دیا، اللہ آپ نے نشانیاں بتا دی لیکن لفظوں میں بتائی، پوری توجہ اہل علم کی چاہوں گا۔ اللہ لفظوں میں تو میں نے سمجھ لیا کہ متقی وہ جو ایمان بالغیب لائے، متقی وہ جو نماز کا پابند ہو، متقی وہ جو دینے میں سخی ہو، متقی وہ جو عالم اور عامل ہو۔ لیکن اللہ اگر یہ 4 نشانیاں میں چہروں میں ڈھونڈنا چاہوں تو پھر کس کس کا چہرہ دیکھوں؟ اللہ، پھر کس کس کا چہرہ دیکھوں؟ اللہ۔ آؤ، اللہ فرماتے ہیں پوچھ، کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ میں نے کہا اللہ پہلی نشانی، توجہ میری طرف، یا شیخ ادھر دیکھ، یہ ڈرون اڑتے رہیں گے، آپ شادیوں میں دیکھ لینا، آج میری طرف دیکھو، پوری توجہ چاہوں گا۔ پہلی نشانی، اللہ اگر پہلی نشانی دیکھنی ہو تو پھر کس کے چہرے میں دیکھوں؟ اللہ فرماتے ہیں مجھ سے کیا پوچھتا ہے، جب پوری قرآن کا خلاصہ بقرہ میں ہے، بقرہ کا خلاصہ 4 آیتوں میں ہے، 4 آیتوں کا خلاصہ، ہاں انہی 4 آیتوں کا خلاصہ، اور میرے نبی کی پوری دور 23 سالہ دور نبوت کا خلاصہ ان 4 آیتوں میں ہے، تو پھر ان 4 آیتوں کا خلاصہ میرے نبی کے 4 یاروں میں ہے۔ سبحان اللہ، زندوں والی کہہ دو سبحان۔ سبحان اللہ۔ آؤ اب شروع کرنے چلا ہوں، اللہ اگر پہلی نشانی دیکھنا چاہوں تو پھر کس کے چہرے میں ڈھونڈوں؟ اللہ فرماتے ہیں مجھ سے کیا پوچھتا ہے؟ اللہ ترتیب خلافت راشدہ چلتا جا رہا، اگر پہلی نشانی ڈھونڈنی ہو تو میرے نبی کے پہلے خلیفہ، پہلے یار ابو بکر صدیق اکبر کا چہرہ دیکھ لے۔ اللہ کیا مطلب؟ فرمایا دیکھتے نہیں، میں نے متقی کی پہلی نشانی بتائی، متقی کی پہلی نشانی بتائی کہ والذین یؤمنون بالغیب، الذی یؤمنون بالغیب، ہاں متقی وہ ہے جو بن دیکھے ایمان لائے، بن بول پڑو، بن دیکھے ایمان لائے۔ آؤ لاہور والو، علماء، طلباء، فضلاء، قراء، صاحب ذوق لوگ بیٹھے ہیں، چیلنج کر رہا ہوں، 1,54,000 صحابہ کی تعریف اٹھا کے پڑھو، جس نے بھی میرے نبی کا کلمہ پڑھا، پہلے کوئی معجزہ، دلیل، نشانی، سوال جواب کیا، پھر کلمہ پڑھا، اکیلا ابو بکر ہے جس نے نبوت کے اعلان کے بعد ابھی نہ نبی کا چہرہ دیکھا نہ نبی کی زبان سے سنا، بن دیکھے کلمہ پڑھا۔ کیا کہنے؟ بن دیکھے، بن دیکھے۔ آؤ تاریخ خلافت راشدہ اٹھاؤ پڑھو، تاریخ الخلفاء اٹھا کے پڑھو۔ توجہ رکھنا، آپ نعرہ نہ لگائیں، اگر توفیق ہوگی تو سٹیج پر مائک والے لگائیں گے، پوری توجہ رکھنا، یہ شاید میرا امتحان لے رہے ہیں، بغیر نعرے کے بھی بول سکتا ہے۔ اللہ کے بندو تم بچے ہو میرے، میں 2 گھنٹے بولوں گا بغیر نعروں کے، ہاں نہ سانس لیتا ہوں نہ لینے دیتا ہوں،
शर्त सिर्फ एक तवज्जो की होती है, पूरी तवज्जो रखना। अल्लाह वो कैसे, फरमाया तारीख उठा के पढ़ कि अबू हुजूर ने जब ऐलान नबूवत किया, लाहौर वालों तवज्जो रखना, जब हुजूर ने ऐलान नबूवत किया अबू बकर मक्के में नहीं थे, सफरे तिजारत पर यमन इराक शाम गए हुए थे, वापस आए, ऐलान नबूवत हो चुका था। अबू बकर अभी मक्के की गलियों में दाखिल नहीं हुए, बाईपास चौराहे पे थे। अबू जहल मिल गया और मिल के कहने लगा, अबू बकर तूने नई बात सुनी है? अबू बकर ने कहा कौन सी? अबू जहल ने कहा एक आदमी मक्के में दावा कर चुका है कि मैं नबी हूँ, सिर्फ नबी नहीं इमामुल अंबिया हूँ, सिर्फ नबी नहीं खातमुल अंबिया हूँ। अबू बकर बंदा भी यतीम और गरीब है, बता ये मुमकिन है? अबू बकर ने कहा, अबू जहल पहेलियां ना बुझवा, पहले नाम बता ये कहता कौन है? वाह वाह। अबू जहल पहेलियां ना बुझवा, पहले नाम बता ये कहता कौन है? अबू जहल ने फौरन कहा, अबू बकर वो तेरा यार मोहम्मद कहता है। सुभान अल्लाह। कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब भी हुजूर का नाम आए ना तो हाथों पे हाथ मुंह पे रख के मुंह बंद नहीं करने होते, हाथ हटा के कहना होता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अलैहि। कुछ लोग मुंह बंद करा देते हैं कहीं दरूद ना निकल आए, इसलिए हाथ हटा के कहा करो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू जाल ने कहा, अबू बकर वो तेरा यार मोहम्मद कहता। लाहौरियो, अभी अबू बकर ने ऐलान नबूवत के बाद हुजूर का चेहरा तक भी नहीं देखा, हुजूर की जबान से ऐलान नबूवत भी नहीं सुना। वहीं खड़े खड़े अबू जाल को कहा, अबू जाल अगर मोहम्मद कहता है कि मैं आखिरी नबी हूं तो फिर सुन, अबू बकर उस आखिरी नबी का पहला नौकर है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, जरा हाथ उठा के नारे तकबीर। शान सिद्दीक अकबर, शान सिद्दीक अकबर, शान सिद्दीक अकबर। क्या कहने हज़रत। इसे कुरान ने कहा अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। मुत्तकी वो है जो बिन देखे ईमान लाए। उसका मिस्दाक अव्वल, मिस्दाक हकीकी, अज़ली, अब्दी, असली वो पेश करने चला हूँ। हाँ, जिसने हमेशा बिन देखे, पूरी तवज्जो मेरी तरफ तलबाए कराओ, जिसने हमेशा बिन देखे। फिर एक मौका आया, हुजूर मेराज पर गए, वापस आए। अभी अबू बकर ने हुजूर की जबान से सफर मेराज नहीं सुना। अबू जहल एंड कंपनी पहले पहुंच गया। अबू बकर एक नई बात हुई है क्या? एक बंदा कहता है मैं रात के एक लम्हे में, जर्रे में, सेकंड में पूरी कायनात घूम के वापस आ गया हूं। इट इज पॉसिबल? क्या ये मुमकिन है? अबू बकर ने फिर कहा, अबू जहल पहेलियां ना बुझवा, पहले नाम बता कहता कौन है? पहले नाम बता कहता कौन है? अबू जाल ने फिर कहा, अबू बकर वो तेरा यार मोहम्मद कहता है। अबू बकर ने अभी हुजूर से तस्दीक नहीं की, वहीं खड़े खड़े कहा, अबू जाल अगर मोहम्मद कहता है जमीन फट सकती है, आसमान टूट सकता है, मोहम्मद की जबान से झूठ नहीं निकलता। इसे कुरान ने कहा अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। मुत्तकी की निशानी अगर चेहरे में देखनी हो तो मेरे नबी के पहले यार अबू बकर का चेहरा देख लो। जो मेरा नबी कहता गया अबू बकर बिन देखे मानता गया। अल्लाह दूसरी निशानी फरमाया, फिर मुझसे क्या पूछता है? उसी तरतीबे खिलाफत रास्ते पे चलता जाओ। अगर दूसरी निशानी देख चेहरे में देखना चाहता है तो फिर मेरे नबी के दूसरे यार फारूक आजम का चेहरा देख लो। अल्लाह वो कैसे? पूरी तवज्जो रखना लाहौर वालों। अल्लाह वो कैसे? फरमाया देखते नहीं, मैंने दूसरी निशानी बताई, वयुकीमून सलात। मुत्तकी वो है जो अज़ल से अबद तक, शुरू से आखिर तक, इब्तिदा से इंतहा तक, जिंदगी से मौत तक नमाज में नजर आए, वो मुत्तकी होता है। जाओ लाहौर वालों, 1,56,000 साहबा की तारीख उठा के पढ़, सब में तुझे अकेला उमर नजर आएगा जो जब आया तो आते ही नमाज थी, दुनिया से जाने लगा तो जाते भी नमाज थी। क्या कहने शान फारूक आजम, शान फारूक आजम। क्या कहने हजरत, वाह वाह। इसे कुरान ने कहा वयुकीमून सलात।
मुत्तकी की दूसरी निशानी अगर किसी के चेहरे में देखनी हो तो मेरे नबी के दूसरे खलीफा, दूसरे यार फारूक आजम का चेहरा देख लो। जो जब आया तो आते ही पहला काम क्या था? बोलो बोलो, क्या था? नमाज। हजरत उमर आए, आके बैठे दरबार रिसालत में और आके कलमा पढ़ा। कलमा पढ़ते ही हजरत बिलाल खड़े हुए, नमाज का ऐलान किया। बिलाल ने पूछा, उमर ने पूछा, बिलाल ये क्या है? बिलाल ने कहा नमाज का ऐलान। उमर ने कहा नमाज क्या है? बिलाल ने कहा अल्लाह की इबादत। उमर ने कहा कहाँ करोगे? बिलाल ने कहा जहाँ बैठे हैं वहां करेंगे। उमर ने कहा क्यों? अगर इबादत रब की है तो फिर चौखट भी रब की हो। अगर इबादत रब की है तो फिर चौखट भी रब की हो। हुजूर ने फरमाया उमर दिल तो मेरा भी चाहता है कि मैं रब की तौहीद के सजदे काबे की दहलीज पे करूं, लेकिन क्या करूं? मुझे कुफारे मक्का काबे की दहलीज पे तौहीद के सजदे करने नहीं देते। उमर ने कहा हुजूर, उमर भी आए, काबे का दर न खुले, उमर के आने का क्या फायदा? हुजूर उठे, मैं चलता हूँ, आज देखता हूँ मेरे मोहम्मद का रास्ता रोकने की जुर्रत किसको है? तारीख सोने के पानी से रिकती है। उमर उठे, तलवार ने आम से निकाली, मक्के की गलियों में लहराते हुए गए, हतीबे काबा की दीवार पे चढ़े, गूंज कर गरज कर ऐलान किया, ओ मक्का वालों, आज कोई है जो उमर की तलवार का मुकाबला करे और मोहम्मद का रास्ता रोके? और तारीख कहती है मक्का की गलियों में सन्नाटा छा गया। तो फिर लाहौर वालों, मैं क्यों ना कहूं, उमर कलमा पढ़ते ही सिर्फ नमाजी नहीं बना बल्कि बानिए नमाज़े काबा बना। आया पहला काम नमाज। माशाल्लाह मुफ्ती साहब आया तो पहला काम नमाज। उमर की पूरी जिंदगी गुजरी। मैं उमर पे बोलूं, मुझे उम्र नूह चाहिए। मैं उमर पे बोलूं, मुझे कई 100 साल की उम्र चाहिए। क्यों? कि उमर का इल्म, अमल, हिल्म, तदब्बर, फरासत, सूझ बूझ, अक्ल, दानिश, इल्म, इरफा, ज़ोद, तकवा, हाँ उसकी फतूहात, हाँ उसकी इस्लाहात, हाँ इतनी अजीम है कि मेरे जैसे हजारों खतीब आए उमर की ऐन का भी हक अदा ना कर सके। लेकिन मैं उमर की पूरी जिंदगी को छोड़कर आखिरी लम्हे में चलने चला हूँ। उमर आया तो आते ही पहला काम नमाज। जब पूरी जिंदगी गुजार कर उमर जाने लगा तो भी उमर नबी के मुसल्ले पे नमाज में था। इसको कुरान ने कहा वयुकीमून सलात। मुत्तकी की दूसरी निशानी अगर किसी के चेहरे में देखना चाहते हो तो मेरे नबी के दूसरे यार फारूक आजम का चेहरा देख लो, जो आया भी नमाज में था, गया भी नमाज में। अल्लाह इख्तिसार करने चला हूं। अल्लाह तीसरी निशानी फरमाया, फिर मुझसे पूछ रहा है अला तरतीबे खिलाफत रास्ता चल। अगर तीसरी निशानी किसी के चेहरे में देखना चाहता है तो मेरे नबी के तीसरे खलीफा, तीसरे यार उस्मान गनी का चेहरा देख ले। अल्लाह क्या मतलब? फरमाया देखते नहीं, मैंने मुत्तकी की तीसरी निशानी बताई, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। मुत्तकी वो है जिसे मैं माल देता जाऊं, वो आंखें बंद करके मेरे नाम पे लुटाता जाए। तारीख उठाओ, उस्मान जैसा सखी न तुझे आज तक मिला है न कयामत तक मिलेगा। कह दो बेशक। क्यों? इसलिए बहुत सारी मिसालें दे सकता हूं मगर इख्तिसार कर रहा हूं। इसलिए कि अकेला उस्मान है, पूरी तवज्जो लाहौर वालों, अकेला उस्मान है कि जिसके नाम का बैंक अकाउंट आज भी मदीने के बैंक में मौजूद है। जिंदा वाली कह दो सुभान अल्लाह। जो मुझसे लंबा सफर करके ना आया हो वो गूंज के कह दे सुभान अल्लाह। हाँ? आज भी मदीने के बैंक में उस्मान गनी के नाम का बैंक अकाउंट मौजूद है। और उस्मान गनी ने जो अपनी जायदादें मस्जिद नबी के नाम पे वक्फ की थी ना, वहां पे बड़े बड़े होटल बन गए। उन होटलों के जो किराए आते हैं उस्मान गनी के नाम वाले बैंक अकाउंट में जमा होते हैं, फिर वहां से निकाल कर मस्जिद नबी की खिदमत में लगाए जाते हैं। इसलिए अल्लाह ने कहा अगर मुत्तकी की तीसरी निशानी चेहरे में देखना चाहता है तो वह मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। उस उस्मान को देख जिसे मैं माल देता गया, वो मैं
चौथी निशानी फरमाया फिर मुझसे पूछ रहा है वही तरतीब खिलाफत राशिदा पे जाना। बड़ा खूबसूरत जुमला एक देने चला हूँ। 2004 में पहली दफ़ा मैंने आपको बताया, ये मैंने उन्वान वहाँ रद्द राफ़ज़ियत पे मुनादरा पढ़ाते हुए साउथ अफ्रीका में जोहान्सबर्ग में किया था, और फिर 2005 में मैंने ये इस उन्वान पर अल्लामा खालिद महमूद PhD लंदन नवर अल्लाह मरकदहू की दावत पर एक कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ पे किया जहाँ मौलाना अरशद मदनी बैठे थे, मौलाना अनवर शाह, मौलाना अंजर शाह कश्मीरी बैठे थे, मौलाना कारी सालिम साहब बैठे थे, दारुल उलूम देवबंद के बड़े उलमा थे, अल्लामा अली शेर हैदरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह थे, मौलाना अल्लामा खालिद महमूद नवर अल्लाह मरकदहू वो थे, सारे हज़रात बैठे थे। जब मैंने चौथी निशानी पे बात की, अल्लामा साहब अपनी कुर्सी से उठ के आए और आके मेरे माथे पे बोसा दिया और कहा वाकई अल्लाह ने तुम पे इल्हाम किया है कि मैं सोच रहा था ये चौथी कैसे फिट करेगा। तवज्जो रखना, अल्लाह चौथी निशानी फरमाया वो भी देखनी हो तो मेरे नबी के चौथे खलीफा, चौथे यार अलीउल मुर्तजा का चेहरा देख लो। अल्लाह वो कैसे, फरमाया देखते नहीं, मैंने चौथी निशानी बताई, वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, महबूब जो इल्म वही मैंने आप पे उतारा और जो इल्म वही मैंने आपसे पहले अंबिया पे उतारा, जो उसे जानता भी हो उसे मानता भी हो वो मुत्तकी है। तो इन जुमलों का ताल्लुक इल्म के साथ है, बल्कि अगला जुमला कहूँ इल्म के साथ नहीं उलूम के साथ है। तो फिर मैं 1,56,000 सहाबा की अगर तारीख उठा के पढ़ूं तो फिर सबसे नुमाया चेहरा मुझे असदुल्लाह अल गालिब अबू तुराब जन्नत के शहजादों का बाप शेर जली हक का वली जनाब अली के चेहरे में नजर आती है। क्यों? इसलिए कि अली सिर्फ आलिम नहीं उलूम का समंदर था। बेशक, नारे तकबीर, दोनों हाथ उठा के नारे का जवाब देना। खिलाफत राशिदा, खिलाफत राशिदा। क्या कहना, अली सिर्फ आलिम नहीं उलूम का समंदर था। क्यों? आप किसी साहबी का नाम लें, तारीख में लें, तफासीर में लें, पूरी तवज्जो रखना, आखिरी चंद मिनट लेने चला हूं, खुलासा कलाम। आप किसी साहबी का नाम ले, अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास का नाम ले, दुनिया कहेगी मुफस्सिर आज़म है। अब्दुल्लाह इब्ने उमर का नाम ले, दुनिया कहेगी मुहद्दिस आज़म है। अब्दुल्लाह इब्ने मसूद का नाम ले, दुनिया कहेगी फकीह उम्मत है। लेकिन जब नाम मेरे अली का आएगा तो पैगंबर का फरमान भी सामने रखना, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। और फिर हदीस के बाद तारीख उठा के पढ़, अली सिर्फ आलिम नहीं उलूम का सर चश्मा, उलूम का मंबा मावा मलजा मेवर मरकज सरापा है। इसलिए इल्मे तफसीर में देख अली माहिर, इल्मे हदीस में देख अली माहिर, इल्मे तारीख में देख अली माहिर, इल्मे फिक़ह में देख अली माहिर, इल्मे तसव्वुफ में देख अली माहिर, इल्मे फलसफा को पढ़ अली माहिर, इल्मे रियाजी को पढ़ अली माहिर, इल्मे लुगत को पढ़ अली माहिर, इल्मे सर्फ को पढ़ अली माहिर, इल्मे नहव को पढ़ अली माहिर, इल्मे अर्जियात को पढ़ अली माहिर, इल्मे फल्कियात को पढ़ अली माहिर। अली सिर्फ आलिम नहीं उलूम का समंदर है। अल्लाह फरमाते हैं अगर चौथी निशानी देखनी हो तो फिर इल्म के समंदर अली शेर जली का चेहरा देख लो। वाह, शान सैयदना अलीउल मुर्तजा, मकाम सैयदना अलीउल मुर्तजा। क्या कहने हजरत, वाह वाह। और फिर अल्लाह अगर इन चार चेहरों की निशानियां हम समझ गए तो फिर मैं क्यों ना कहूं, जैसे मैंने इब्तिदा में कहा कि पूरे कुरान का खुलासा बकरा का खुलासा शुरू किया इन चार आयतों में। हाँ, पूरे दीन का, ईमान का, कुरान का खुलासा इन चार आयतों में, बल्कि इसको भी अगर मुख्तसर करूँ ना तो फिर उसका खुलासा एक आयत में है। वो आयत कौन सी है? हुदल लिल मुत्तकीन। हुदल, गुंगा भी बोले हुदल लिल मुत्तकीन। क्या माना? अल्लाह फरमाते हैं मुझे सिर्फ तुमसे तकवा चाहिए, मैं तुम्हारी जाहिर पे नजर घुमाता ही नहीं, जिस जाहिर पे तुम बड़ी मेहनत करते हो, पता चले वली हूँ, पता चले सूफी हूँ, पता चले नेक हूँ, पता चले बड़ा आबिद ज़ाहिद हूँ, पता चले बड़ा मिटा हुआ हूँ। मेरा रब तो कहता है अल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, मैं खुद भी हसीन हूँ, मुझे हुस्न पसंद है। हाँ, और हम मैले कपड़ों वाले ढूंढते हैं। पूरी तवज्जो रखना।
पूरी तवज्जो। अल्लाह फरमाते हैं हुदल लिल मुत्तकीन, मुझे तुमसे तकवा चाहिए, और तकवा कहाँ होता है? अंदर। अंदर लन यनाल अल्लाहु लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। हाँ, अल्लाह फरमाते हैं मुझे तुम्हारे गोश्त पोश की, खून के लोथड़ों की, जुब्बों की, कुब्बों की, दस्तारों की, हाँ, किसी चीज की जरूरत नहीं है। मैं तो तुम्हारे अंदर झांकता हूं कि इसके अंदर क्या है। हाँ, तो हर नेकी के साथ अल्लाह ने तकवे का लफ्ज जोड़ा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। रोजे रखो ताकि मुत्तकी बन जाओ, हज करो ताकि मुत्तकी बन जाओ, नमाजें पढ़ो ताकि मुत्तकी बन जाओ, कुर्बानी करो वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, ताकि मैं तुम्हारा तकवा देख लूं। तो फिर क्यों ना कहूं कि सारा खुलासा है मुत्तकीन में, तकवे में। और मुत्तकीन की अल्लाह ने निशानियां 4 चेहरों में रखी। फिर इसलिए अगर दुनिया आखिरत की कामयाबी चाहते हो तो फिर अबू बकर, उमर, उस्मान, अली के नक्शे कदम पे चलो। नतीजा क्या होगा? रब ने वो भी कुरान में शुरू में लिख दिया, उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफलिहून। लाहौर वालों, अगर हक 4 यार के पीछे चलोगे तो तुम्हारी दुनिया भी बना दूंगा, तुम्हारी उकबा भी बना दूंगा। इसी पे इक्तफा करते हुए कहता हूं कि वुसअत दिल है बहुत, वुसअत सहरा कम है। वुसअत दिल है बहुत, वुसअत सहरा कम है, इसलिए मुझको तड़पने की तमन्ना कम है। अब जिसके जी में आए वो ले इससे रोशनी, हमने तो दिल जलाकर सरेआम रख दिया है। तुम ऐसा करना कि कोई जुगनू, कोई सितारा संभाल रखना। तुम ऐसा करना कि कोई जुगनू, कोई सितारा संभाल रखना। मेरे अंधेरों की फिक्र छोड़ो, तुम अपने घर का ख्याल रखना। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।